Hello students, how are you? I hope you will be fine. Yes students, in today's session again we are here to discuss organic chemistry, fission and types of reaction. This is related to unit number 12, organic chemistry, some basics, basic principles and techniques. So here in today's session we will see fission, nucleophiles and electrophiles. After that we'll see types of reactions. Okay, so let's start. First, fission. So what is fission? Fission means a fission of bonds. Actually today we will discuss about the fission of bonds. And what is fission? Fission means breaking, how a bond is breaked during a chemical reaction, or how the atoms or the molecules they react with each other to form a new compounds. So during the formation of new compounds, definitely the bonds of the reactants, these will be break. Okay, so in fission, first let me tell you, in fission suppose we have carbon and carbon. So you know, the carbon and carbon, both these two atoms, they have similar chemical and physical properties. So their power, their strength, it will be same. Okay, but if these atoms are bonded with some other atoms like oxygen, hydrogen, 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 so see here, the nature of carbon, it is different. Nature of carbon means this carbon, you see, this is bonded with carbon, hydrogen, hydrogen and hydrogen, with one carbon and three hydrogen. But this carbon, it is bonded with one carbon, two hydrogens and one oxygen. So the nature of these two carbon atoms, these are quite different. Though the atoms are same, both the atoms are same, these are carbons, but their surrounding is different, so their nature will be changed. Okay, so in this changed nature, the bond between carbon and carbon, it will be breaked. So this bond can be break by two ways. First is known as homolytic fission and second is known as heterolytic fission. So see, a covalent bond get cleaved either by homolytic fission or homolytic cleavage or heterolytic cleavage. So what is the meaning of homolytic and heterolytic? So see, if between two atoms, suppose these are two carbon atoms, okay, you can take other atoms, these two electrons are shared between these two carbon atoms. So in this cleavage, three types of cleavage are possible, or three types of shifting of electrons are possible. See, what is the meaning of cleavage? Cleavage means these two carbon atoms are bonded with covalent bond, and covalent bond is shared by it is formed by the sharing of one electron by each carbon atom. So see, whenever these carbon atoms, they are going away from each other, they are departing from each other, so this covalent bond can be broken either by homolytic way or heterolytic way. In homolytic cleavage, this electron was shared by this carbon and this electron was shared by this carbon. So this electron will shift on this carbon, this electron will shift on this carbon. So both the carbon atoms, they will withdraw their electrons they have shared. Okay, so this is called homolytic cleavage. What is actually happening here? See, in a simple words, कार्बन एटम्स ने क्या किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है. ओके, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, दोनों कार्बन ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा. तो इसमें हुआ क्या, उन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वह उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया. तो यह है होमोलिटिक क्लीवेज. हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में ये जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक एटम के पास चले जाएंगे. या तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएं, कार्बन के पास, तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब डोनेट कर रहा है.
तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज ये दो तरीके से हो सकता है, ये क्लीवेज दो तरीके से होगा, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। सो देखिए, इन होमोलिटिक क्लीवेज one of the electron of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atoms। मीनिंग क्लियर हो गई। मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, उन एटम्स के पास चले जाएंगे, उस एलिमेंट के पास चले जाएंगे जिन्होंने उसको शेयर किया, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों वापस ले लेंगे। इस होमोलिटिक फिजन से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, फ्री रेडिकल। हेटेरोलिटिक फिजन, सो इन दिस फिजन द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। मतलब क्या हो गया कि दोनों एटम ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी एक के पास चले जाएंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो होगा माइनस, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट एटम, सो दैट एटम विल हैव पार्शली, इट विल हैव कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, आपको दो आयंस मिलेंगे, एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा। तो हेटेरोलिटिक फिजन, इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कहते हैं कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन। इनके बारे में हम अब डिस्कस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि क्लीवेज कितने टाइप से होगा, दो टाइप से होगा, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम के पास वापस चले जाएंगे, बट हेटेरोलिटिक में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने उनको शेयर किया था उनमें से किसी एक के पास चले जाएंगे। तो सी फर्स्ट इज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में सपोज यहां हम एक बॉन्ड बनाते हैं, आर सिंगल बॉन्ड एक्स। यहां पर आर क्या होगा, ये कार्बन एटम होगा इसमें, और एक्स क्या होगा, कोई एक हेलोजन है, दूसरा एटम होता है। तो यहां आर एक्स लिखने का पर्पज ये है कि दोनों के पास जो है इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया था। तो इस बॉन्ड को हम कैसे शो कर सकते हैं, आर एक्स का मतलब क्या, आर एक्स का मतलब आर और एक्स के बीच में क्या होगा, आर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और ऐसे ही एक्स ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तभी तो यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब दोनों शेयर करेंगे तो अब क्या होगा, इसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने का मतलब आर के पास जो आर ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो इलेक्ट्रॉन आर के पास वापस चला जाएगा। तो ये इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन आर के पास वापस चला गया। इसी टाइप से देखें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, एक्स के पास चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट क्या होगा, आर इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक्स इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहां से समझ में आ गया कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास चले जाएंगे। तो इन स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल। जैसे आर के ऊपर हमने जो सिंगल डॉट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब डॉट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन है। आर फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर। तो देखिए, सपोज मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं वो कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। इस कार्बन को आप देखो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना मिलेगा आपको, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। 2s मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हमको बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेंगे, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, जितने भी हमारे पास पेयर्स हैं वो सारे पेयर्स कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाली वाले ऑर्बिटल में। तो देखो ये तो पहले से हमारे पास है, ये दोनों तो पहले से फिल है। यहाँ जो हमारे पास ये पेयर है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, इसमें चला गया, ठीक। तो हमारे पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें इस कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन है,
तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, ये सेकेंड हाइड्रोजन और ये थर्ड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ने यहाँ पर अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। और एक बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? कार्बन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा यहाँ पर? कार्बन। तो इस चीज़ को समझ लेना कि यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास ये जो पेयर है, इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। ये लास्ट वाले पेयर में देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। कौन से कार्बन? ये फर्स्ट कार्बन का है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? सेकेंड कार्बन का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन के जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने से हमारे पास जो स्पीसीज मिलेगी, वो स्पीसीज क्या होगी? ये देखो, इसमें हमने सिर्फ कार्बन को अलग किया है, तो हाइड्रोजन तो रहेंगे इसमें। हाइड्रोजन रहेंगे तो क्या होगा? ये पेयर भी रहेगा, ये पेयर भी रहेगा, ये पेयर भी रहेगा, क्योंकि तीनों किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। सिर्फ क्या होगा, इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया था, ये इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन के पास चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला पेयर है, इस लास्ट वाले पेयर में से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने शेयर किया था, उस इलेक्ट्रॉन को वो बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लास्ट वाला ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन इसमें आएगा S, क्योंकि S पार्टिसिपेट किया, sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? S, और ये 2 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो P2, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एक ऑर्बिटल इसका हाफ फिल्ड रहेगा, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिल रहा है हमको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये आपको मालूम, हमने 4th यूनिट में पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल कैसे? सेंटर में होगा कार्बन, इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन्स रहेंगे, वो 3 हाइड्रोजन हमने ऐसे लगा दिया। कंपलसरी नहीं कि हाइड्रोजन ही साथ में रहे, पर हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 जो एटम उससे बॉन्डेड है वो लगा दिया। और एक ऑर्बिटल कैसा होगा? ये देखा, ट्राइगोन दिख रहा है। और एक ऑर्बिटल कैसा होगा? पार्शली फिल्ड, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इनमें से अब देखें, ये क्या हो रहा है? ये S का ऑर्बिटल था, ये P ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, और इसमें ये P हाफ फील्ड दिख रहा है आपको। तो हाफ फील्ड होने का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। जब ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले से समझने से पहले हम पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इन क्लासिफिकेशन को कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो इसको समझना। यदि कार्बन से मीथेन से हम कंपेयर करते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया मीथेन, हो गया ना मीथेन। अब इस मीथेन के साथ हमने एक सब्स्टिट्यूट किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लिख रहे हैं हम? क्लोरीन। तो ये हो गया हमारे पास मैथाइल क्लोराइड। क्या हो गया ये? मैथाइल क्लोराइड। ठीक है, इस मैथाइल क्लोराइड में यदि हम ये फिजन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास पोर्शन क्या बचेगा? ये वाला फिजन समझना है। ये वाला फिजन क्या है? इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। कंपेयर किस टाइप से? कंपेयर ये कर रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हमने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास स्पीसीज क्या बचेगी? CH3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, प्लस Cl, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल और मैथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या? ये जो डॉट्स हमने बनाया था, ये क्या है? फ्री रेडिकल। तो ये हो गया CH3 फ्री रेडिकल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें कार्बन, इसमें 4 बॉन्ड, एक क्लोरीन तो है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम एक और कार्बन से। अब इस चीज को समझ लेना। पहला स्ट्रक्चर क्या था? पहला हमारे पास कंपाउंड था CH3Cl,
उसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो ये कहलाएगा प्राइमरी। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी कहलाएगा। प्राइमरी को जब आप इसका फिजन करेंगे, ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, तो प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में ये होगा हमारे पास CH3 CH2, ये रेडिकल बनेगा। ये हो गया हमारा प्राइमरी। देखो हमने पहले क्या लिखा था? CH3, तो इसमें क्या हो गया? एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया प्राइमरी। इसी टाइप से यदि आप इस CH3 में से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो इसमें एक और ऐड होगा CH3 और एक CH3 और ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा रेडिकल। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मतलब क्या? CH3 में से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो कार्बन के साथ, तो ये हो गया सेकेंडरी। और टर्सरी क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा सेकेंडरी। और टर्सरी क्या होगा? टर्सरी मतलब ये तीनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, इस हाइड्रोजन की जगह एक CH3 और लगा देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी फ्री रेडिकल। तो हमें स्टेबिलिटी देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको मिलेगा 3 डिग्री, मतलब टर्सरी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी स्टेबल है, फिर प्राइमरी स्टेबल है, और उसके बाद फिर मेथाइल स्टेबल होगा। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल। रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए इसमें हमको करना क्या है, समझना कैसे है, वेरी सिंपल वर्ड्स। ये जो हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे थे, फ्री रेडिकल में क्या होगा? कार्बन, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ है 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो ये हो गया क्या? मेथाइल। सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी मतलब यहां पर लिखना हमको CH3, उसके साथ एक कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, और कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये होगा सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी को हम क्या लिखते हैं? 2 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, टर्सरी मतलब क्या? ये होगा, सॉरी, ये होगा प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब क्या? एक CH3, इस कार्बन के साथ एक CH3 और रिप्लेस कर दो, और सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया सेकेंडरी। और टर्सरी में क्या होगा? तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएंगे, किससे? CH3 से। तो ये हो गया हमारे पास टर्सरी। अब इसमें हमको समझना है कि स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड करती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और दूसरा स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी हाइपर कॉन्जुगेशन पर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, इस चीज़ को हमको समझना है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन कंपलसरी है। अल्फा कार्बन मतलब क्या? ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल के साथ ये कार्बन हो गया इसका बेस कार्बन। इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमको हाइपर कॉन्जुगेशन समझना है। और यहां देखना, इसके पास कितने CH3 हैं? 1। यहां पर कितने CH3 हैं? 2। और यहां पर कितने CH3 हैं? 3। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यदि आपने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लिया, तो आगे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट क्या होगा? ये पहले लिखते हैं हम कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 3 हाइड्रोजन, इसके साथ ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये हम प्राइमरी को बना रहे हैं। और इसके पास है फ्री रेडिकल। क्या होगा इसके पास? फ्री रेडिकल। ओके, अब क्या होगा इसमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट क्या है कि जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरीके से करेंगे? तो ब्रेक हम करेंगे, यहां पर जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक, तो हमारे पास स्पीसीज क्या बचेगी? HC। कार्बन के पास क्या हो गया? सिंगल, और यहां पर H रहेगा प्लस, ये डॉट रहेगा। फिर यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास ये डॉट है, इस कार्बन के पास ये डॉट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। तो इनमें क्या होगा? कार्बन और कार्बन, ये इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे।
तो इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन से अब आप चेक करो कार्बन की स्टेबिलिटी, क्या चारों कोऑर्डिनेट, चारों कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट है इसके। सो 1 2 3 4 ये कार्बन सेटिस्फाई है, 1 2 3 4 ये कार्बन भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। तो एक हाइड्रोजन से एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर अगले टास्क में क्या होगा, अभी हमने इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया था, अब हम इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो स्पीसीज क्या होगी, हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा डॉट, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड सी रहेगा। तो ये आप देखो ये इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। पहले फ्री रेडिकल कहाँ चला गया, इस का हाइड्रोजन के पास, अब कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर में कहाँ चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास। इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, यहां पर H। तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर मिल गए, 3 स्ट्रक्चर मिल गए। तो एक हमारे पास जो मैथाइल ग्रुप है, एक मैथाइल ग्रुप होने से ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। पहले इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास जा रहा, फिर हाइड्रोजन के पास, फिर हाइड्रोजन के पास। तो डीलोकलाइजेशन से क्या हो रहा है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये हम समझ लें कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने से, एक मेथाइल होने से 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, 2 मेथाइल मतलब 6 स्ट्रक्चर मिलेंगे, और टर्सरी में क्या होगा, 3 मेथाइल मतलब 9 स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जो हमने ऑर्डर लिखा था, वो ऑर्डर क्या लिखा है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, और उसके बाद फिर 1 डिग्री स्टेबल है। चलिए ये तो हो गया फ्री रेडिकल का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कार्ब कैटायन। तो फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब होमोलिटिक फिजन होगा। अब क्या देखना है हमको, हेट्रोलिटिक फिजन। तो हेट्रोलिटिक फिजन ये एक ऐसा फिजन होगा जिसमें कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स दे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम कार्बन, तब बनेगा ये कार्ब कैटायन। कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो देखो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, अ स्पीसीज हैविंग अ कार्बन एटम possessing sextets of electrons and a positive charge is called a carb cation। कार्ब कैटायन मतलब कार्बन के ऊपर रहेगा एक पॉजिटिव चार्ज और 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस चीज को समझने के लिए बहुत सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल यहां पर मैं ले रहा हूं C, ये CH3 और यहां पर लेता हूं Cl। तो सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने से क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके, फिर एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, किसका, इस हाइड्रोजन का। सेकेंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, थर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या होना है, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब ये जो कार्बन और क्लोरीन, इनके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन के पास। तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन के पास। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बचेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पी में ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने लिखा इसको, ठीक है, ऑक्टेट की जगह क्या होगा, ये सेक्सटेट होगा। और कार्बन के ऊपर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे दूर जा रहे हैं, कार्बन से। तो कार्बन के ऊपर का चार्ज प्लस आएगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज को हम कहते हैं कार्ब कैटायन। क्लियर हो गया। अब कार्ब कैटायन के बाद देखना है हमको फॉर्मेट। फॉर्मेट ये है R सिंगल बॉन्ड X, इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, X के पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और X के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बनेगा R प्लस, मतलब कार्ब कैटायन। इस कार्ब कैटायन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये हमने देखा था ना अभी, sp2 में क्या हो रहा था, ये 3 में से यहाँ पर तो पेयर बचे, और लास्ट वाले यहाँ के पेयर कहाँ चले गए, क्लोरीन के पास।
तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से स्ट्रक्चर होगा इसका ट्राइगोनल, ये बनेगा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑर्बिटल इसका कैसा रहेगा, वेकेंट रहेगा। तो कार्बन के ऊपर आएगा चार्ज कौन सा, प्लस चार्ज, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका, कार्ब कैटायन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3 प्लस। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस ऑर्डर में क्यों मिलेगा हमको, तो रीजन इसका ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर का, ये हम बनाते हैं कार्बन, ये इसको अभी अलग कर दी, कार्बन देखना, ये हम कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं। कार्बन, इसके साथ तीन क्या है, हाइड्रोजन, ये है मेथाइल फ्री रेडिकल। सेकेंड क्या है, 1 डिग्री मतलब CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में इस कार्बन के साथ कितने मेथाइल रहेंगे, 3 मेथाइल रहेंगे, ये हो जाएगा 3 मेथाइल। अब देखना यहाँ पर इंडक्टिव, ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब कार्बन को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस CH3 का इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सो ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्शली शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, पार्शली मूव करेंगे कार्बन की तरफ। तो कार्बन को तो माइनस चाहिए ना, यहाँ से तो इसको माइनस मिल रहा है थोड़ा सा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। प्लस को क्या चाहिए, माइनस, वो माइनस तो इसको यहाँ से मिल रहा है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड डिग्री की बात करें हम, तो सेकेंड डिग्री में क्या है, 2 CH3 हैं, तो इसको कार्बन को और ज़्यादा माइनस चार्ज मिलेगा। और 3 डिग्री में क्या होगा, 3 मेथाइल ग्रुप हैं, तो सबसे ज़्यादा माइनस किसको मिलेगा, 3 डिग्री को। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, मीनिंग ये है कि जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, उसमें 3 मेथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो कार्बन को मिलेगा माइनस, कार्बन के पास है प्लस, प्लस और माइनस मिलके क्या होंगे, स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये मिलेगा हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट रीजन, तो रीजन क्या है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। आफ्टर कार्ब कैटायन अब हम देखेंगे कार्ब एनाइन। सो इन कार्ब एनाइन, कार्बन इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस माइनस चार्ज आएगा, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, कैसे कंप्लीट होगा, तो वेरी सिंपली, ये फिर से एग्जांपल हम लेते हैं CH3 और NO2 का एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, पर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो CH3 के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज। अब इस चीज को समझना, कार्बन इसका जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के बाद ये हो जाएगा कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इस एक्साइटेड स्टेट में 3 हाइड्रोजन हमारे पास, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन किसका मिलेगा, NO2 का, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, ये बन गया हमारे पास CH3NO2। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, CH3 के पास। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, CH3 के पास। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि NO2 तो यहां से रिमूव हो गया, यहां का बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन NO2 का इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया है, CH3 के पास। तो CH3 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक हो गया अब यहां पर लोन पेयर। क्या हो जाएगा, लोन पेयर, क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड नहीं बना है। बॉन्ड कब बना है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन दोनों जब होंगे तब वो बॉन्ड बनेगा। यहां पर तो ये कार्बन का है डेफिनेटली, और ये इलेक्ट्रॉन NO2 से मिला है, लेकिन यहां पर बॉन्ड NO2 अब नहीं है, NO2 बाहर निकल गया है, तो ये बनेगा लोन पेयर। तो जब ये लोन पेयर बनेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा sp3 का, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है,
पिरामिडल स्ट्रक्चर होने से स्टेबिलिटी ऑर्डर ये मिलेगा। तो रीजन होगा इसका ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इस चीज को हम समझते हैं। तो पहले इसका देखिए बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक होगा। आर एक्स इलेक्ट्रॉन किसके पास चला है, आर के पास, तो आर के ऊपर चार्ज क्या आ गया माइनस, और एक्स के ऊपर चार्ज आ गया प्लस। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन तो हैं, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये हो गया इसका। ठीक है, अब यहां पर हमको ये समझना है कि यह स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से क्यों है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर समझने के लिए आप देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए फिर से देखें आप, ये बनाएंगे हम सबसे पहले CH3 माइनस, फिर यहां बनाता हूं मैं स्ट्रक्चर किसका, CH3 CH2 माइनस। ठीक है, मतलब ये देखो कार्बन, इसके साथ क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, और कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे, एक क्या रहेगा CH3, और कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। फिर सेकेंडरी में क्या होगा, तो सेकेंडरी में 2 CH3 रहेंगे, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, 1 हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर इफेक्ट क्या होगा, ये जो CH3 है, ये वाला CH3, ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहां शिफ्ट करेगा, कार्बन की तरफ। इसका इफेक्ट कौन सा आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस, और कार्बन को क्या मिल रहा है, और माइनस मिल रहा है। तो क्या ये स्टेबल होगा, पहले से माइनस था, एक और माइनस मिल गया, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ तो 2 CH3 हैं, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और टर्सरी में क्या होगा, 3 CH3 होंगे, तो टर्सरी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसलिए हमारे पास ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल है, फिर 1 डिग्री स्टेबल है, और फिर लास्ट में CH3 माइनस, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया कार्बेनियन आयन। ओके, आफ्टर कार्बेनियन आयन अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लवर। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का लवर कौन होगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का लवर होगा, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, एनायन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स को। अ रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, न्यूक्लियस सीकिंग या न्यूक्लियस लवर। एंड द रिएक्शन इज देन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। दीज आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और लुईस बेस। अब यहां पर इस चीज को समझ लेना है, कौन सी, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और लुईस बेस। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जैसे कि OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा, डेफिनेटली ये जो OH माइनस है ये Na प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा और NaOH बनाएगा। तो ये OH कहाँ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है। किसके पास जा रहा है, ये प्लस की तरफ। तो ये हो गया न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लुईस बेस में क्या होगा, लुईस बेस जैसे कि NH3 अमोनिया, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कौन सा होगा, माइनस। तो ये माइनस चार्ज किसको डोनेट करेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई प्लस वाले को ही डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और लुईस बेस, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जाम्पल, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में OH माइनस, NO2 माइनस, R3C माइनस, जो कार्बेनियन आयन है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। RNH2, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। R3N, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो इससे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट करेगा,
न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आफ्टर न्यूक्लियोफाइल अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन सीकिंग, वो न्यूक्लियस सीकिंग था, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। अब न्यूक्लियोफाइल क्या था? लुईस बेस था, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? लुईस एसिड। निगेटिवली चार्ज था न्यूक्लियोफाइल, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। देखिए एग्जाम्पल इसका लेंगे हम। पहला एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड का। CH3 प्लस मैथाइल, ये कार्ब कैटायन हो गया। H प्लस कार्ब, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। NO प्लस, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि ये सब क्या करेंगे? माइनस की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में यहां आपको समझना है कि ये जो हमने लुईस एसिड लिखा है, लुईस एसिड क्यों? रीजन ये है कि हम एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे हम 3s2 3p1। 3s2 मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके चला जाएगा? p में। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में जब आ गया ये, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? हमारे पास 3 Cl हैं। 3 Cl है मतलब 1 2 3, तो ये तो ऑर्बिटल खाली दिख रहा है ना हमको। इस खाली ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो AlCl3 है, ये AlCl3 क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड मीन्स these are the neutral molecules which can accept the lone pair of electrons. So AlCl3 क्या है? ये AlCl3 हो गया लुईस एसिड। और दूसरा एग्जांपल BF3, ये क्या हो गए? लुईस एसिड्स हो गए। अब देखना हमको डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, तो आपको सारा पूरा क्लियर हो जाएगा। दीज आर आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये निगेटिवली चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रोफाइल किसके जैसा बिहेव करेगा? लुईस एसिड के जैसा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? लुईस बेस का बिहेवियर दिखाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, तो इलेक्ट्रॉन लवर मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सकता है? जो कौन कर सकता है एक्सेप्ट? जिसके पास ऑर्बिटल खाली होगा। तो ये क्या होंगे? ये होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे कि ये देखो AlCl3 का जो हमने लिखा था, तो AlCl3 में क्या था? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। 3 क्लोरीन से इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितना होगा ये? 16। होना चाहिए कितना? 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच न बोल के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली होना चाहिए, वो होगा न्यूक्लियोफाइल। और फिर इसके बाद लास्ट डिफरेंस आएगा, दे हैव एटलीस्ट 1 एम्प्टी ऑर्बिटल ड्यू टू विच दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने AlCl3 में देख लिया। एंड न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए? दे हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी इजिली डोनेटेड। तो लोन पेयर की डेफिनेशन समझ लेना अच्छे से। लोन पेयर मतलब वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, चलिए आफ्टर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपने 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसी टाइप से यहाँ पर हम क्लासिफाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट तो इसमें सिर्फ शिफ्टिंग होगी। तो एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? एटम्स का एक्सचेंज होता है। द रिएक्शंस
in which one atom or group of atoms is replaced by an atom or group of atoms are called substitution reaction. See example. इसमें substitution का मतलब क्या? ये जो CH3 है NaBrOH, अभी क्या दिख रहा है? CH3 के साथ कौन है? Br. CH3 के साथ कौन चला जाएगा? Na. और Br CH3 के साथ कौन चला जाएगा? OH. और Na के साथ क्या हो जाएगा? Br. तो इसमें हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट. यही तो डबल डिस्प्लेसमेंट है. डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? AB प्लस CD इट इज इक्वल टू AC प्लस BD. तो यही तो हो रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस पढ़ा था हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में. यहाँ पर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि जो हमारे पास स्पीसीज है उस स्पीसीज में से एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या होगा? एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाम देखो मेथाइल ब्रोमाइड और इसका नाम होगा मीथेनॉल. ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब समझ लेना, जहां कहीं भी आपको दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं, दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं और उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. सेकेंड है एडिशन रिएक्शन. तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? दो रिएक्टेंट दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हमने 10th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. एल्कीन देखो, एल्कीन प्लस H2, ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल. कौन सा? ये मॉलिक्यूल है हमारे पास एथीन. उसमें एथीन के साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और क्या बन गया? इथेन. तो देखो दो रिएक्टेंट है हमारे पास. रिएक्टेंट कौन से हैं? दो, एक और एक. दो रिएक्टेंट हैं, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एडिशन रिएक्शन. आफ्टर एडिशन रिएक्शन दूसरे एग्जांपल लेते हैं. तो इसमें अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने हैं? एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है. दो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सिर्फ एक है. तो ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो गया? ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया और ये ब्रोमीन किस में ऐड हो गया? इस कार्बन के साथ ऐड हो गया. तो एडिशन हो गया ना, यही है एडिशन रिएक्शन. थर्ड है, थर्ड रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन मतलब डिकम्पोजिशन. तो एलिमिनेशन में क्या होगा? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिएक्टेंट में से एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल देखो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, ये रिएक्टेंट दिख गया और ये प्रोडक्ट. अब कंपेयर करो, CH3 ओके, CH2 एक हाइड्रोजन कम है. CHBr CH एक Br कम है. CH3 तो मॉलिक्यूल कौन सा इसमें कम हो रहा है? HBr मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन. सो क्लियर हो गया, अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, और ये होगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में. 2-ब्रोमोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम होगा 2-ब्यूटीन. तो ये हो गया हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन. और रीअरेंजमेंट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है. तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल लेना हमको जिसमें जो एटम्स हैं वो एटम ना तो कम होंगे, ना ही ज़्यादा होंगे, ना ही कोई ऐड होगा, ना ही कोई एलिमिनेट होगा. इसमें क्या होगा? एटम की सिर्फ पोजीशन चेंज होगी. ठीक है, तो रीअरेंज करना है इसको. रीअरेंज का मतलब उनमें से आपको किसी को अलग नहीं करना है, कोई ऐड नहीं करना है. इसमें क्या होगा? इन दीज रिएक्शंस द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स माइग्रेट्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? माइग्रेट हो रहा है, सिर्फ शिफ्ट हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल. जो हमारे पास सैंपल है सेम मॉलिक्यूल, उसी में ये माइग्रेट होगा. ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या होगा एग्जाम्पल. तो ये मैं एग्जाम्पल लेता हूं. ये हमारे पास मॉलिक्यूल है. देखो इसमें क्या हो रहा है? यहां से CH2 CH3 इसमें एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब प्लस H हो गया था. इसमें प्लस H कर दिया ना. CH ओके, CH2 यहां पर एक हाइड्रोजन कम हो गया. CH3 CH3
तो नेट हाइड्रोजन चेंज कितना आ रहा है? यदि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे, कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 7 और 1 8, CH88, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो बताओ क्या इसमें कोई भी एटम बाहर गया? नहीं। अंदर आया? नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है? ये देखो, यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये कहां से चला गया? यहां शिफ्ट हो गया। देखो CH2 में से CH, एक हाइड्रोजन निकल के कहां गया? CH2 के पास। और ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया? इस पोजीशन में शिफ्ट हो गया। तो जहां पर शिफ्टिंग होगी, माइग्रेशन होगा, वही होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. That's all for today's session. Okay, now if you have doubt you can contact me. Okay, thank you very much.